نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب بہنوں کا؟ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ الحمد للہ الحمد للہ. لیکن آواز میں ویسے کوئی خاص جوش نہیں محسوس ہوا. یا تو کھا پی وعلیکم السلام ورحمۃ چکے اللہ ہیں کہ وبرکاتہ. اب سونے کا وقت آ چکا ہے اس لیے. نہیں میرا خیال ہے انرجی جو ہے وہ رمضان کے لیے سنبھال رہے ہیں سارے. نہیں آپ ہی ہم بالکل فریش بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل فریش بیٹھے ہوئے تھے. آواز ہی نہیں آئی ویسی ایک جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ. آپ لوگوں کی بیسٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کافی ایسے بعد کلاس ہو رہی ہے آپ لوگوں کی, تو آپ لوگوں کے اندر تو ایک جوش و ولولہ ہونا چاہیے کہ آج کلاس آج کیا ہوگا. نہیں ایکچولی فرسٹ ایکسپیرینس تھا. نیکسٹ جوش و خروشی تو ہے ٹیچر, لیکن آواز نہیں آئی. انتظار تو بہت ہے آپ کا. ہاں جی. اچھا جی چلیں انتظار اب ختم ہوا الحمدللہ. آج کی کلاس میں نظر آ رہے ہیں, لیکن اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں مائک میوٹ رکھیے گا, جب بولنا ہو تب مائک اوپن کر کے بولیے گا. آج کی اس کلاس میں ہمارے ساتھ بیچ 1 کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں الحمدللہ, بیچ 2 کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اور کچھ نیو اسٹوڈنٹس جو رحلت القرآن کی طرف سے ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو آپ سب کو ایک ساتھ جگہ جمع کر کے کیا پڑھانا ہے, تو بات یہ ہے کہ بیچ 1 تو الحمدللہ مخارج اور صفات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, لیکن انہیں ابھی تک مخارج یاد نہیں کروائے گئے, بلکہ بیچ 2 کو بھی مخارج یاد نہیں کروائے گئے. ہماری یا آپ کہنے کی میری کوشش رہی کہ آپ لوگوں کو جو میکینزم ہے کسی بھی حرف کے نکلنے کا وہ سمجھا دیا جائے. آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ اس میکینزم پہ ہو کہ کس طریقے سے ایک حرف کو ہم نے ادا کرنا ہے, بجائے اس کے کہ صرف لفظوں کو اس کی ڈیفینیشن کو آپ رٹا لگا لیں. لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ جلدی سے کسی بات کو بیان کر سکیں, یعنی کسی لیٹر کے مخرج کو بتانا ہو تو کم الفاظوں کے ساتھ پراپر اس کی ڈیفینیشن بھی آپ کو آنی چاہیے. تو آج کی کلاس یا رمضان تک بھی جو آپ کی کلاسز انشاءاللہ 4 ویک ہماری جو یہ کلاسز ہوں گی, اس میں بیسیکلی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ سب اب مخرج کو یاد کریں, اردو میں بھی یاد کریں, انگلش میں بھی یاد کریں, اور سب سے اچھا عربک میں بھی یاد کریں. عربک میں سمجھیں اچھی طریقے سے, اردو میں بھی بولنا جانیں کہ اردو میں اس کو کس طریقے سے بولنا ہے, انگلش میں اگر بولنا ہے تو اس کو پھر کیسے بولنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں, آپ میرے پاس پڑھیں, آپ کہیں اور بھی پڑھیں, تو آپ کے لیے یہ ایشو نہ آئے, یا آپ آگے پڑھانا چاہیں, کیونکہ ماشاءاللہ جو ہمارا بیچ 2 بھی ہے جو ایک پارہ کمپلیٹ کر چکا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہوگی جو آہستہ آہستہ اگر پڑھانے کی طرف آئے تو وہ آ سکتی ہے. لیکن ان سب کے لیے ضرورت کیا ہے کہ آپ کو ہر لیٹر کے مخرج جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھ بھی آتے ہو, اس کی ادائیگی بھی آتی ہو, اور اس کی ڈیفینیشن بھی یقینی طور پر آتی ہو. آپ اس قابل ہو سکیں کہ آپ کے پاس اگر 2-3 تجوید کی بک ہے تو بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس میں اس بک میں جو بات لکھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا اگر صحیح ہے تو کیا چیز بیان کرنے کی کوشش کی ہے. سسٹر اسما, یہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پلیز اپنا مائک بند کر دیں, سوری اپنا کیمرہ آف کر دیں. ٹھیک ہے, آج کی اس کلاس میں ہمارا کیمرہ آپ سب اسٹوڈنٹس کے رحلت القرآن کی بھی اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے ہم وہاں پہ کیمرہ اوپن کر کے پڑھتے ہیں, تو اس لیے آپ کو عادت ہوگی کہ کیمرہ خود کھول دینے کی, لیکن اس وقت اس کی ریکارڈنگ ہوگی, یوٹیوب پہ جائے گی, تو اس لیے آپ لوگ اپنا کیمرہ جو ہے وہ بند ہی رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو کیا سمجھ میں آیا میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہمیں مخارج کو سمجھنا بھی ہے, اس کو یاد بھی کرنا ہے, اور اگر پڑھانا ہو تو ہمیں اس کی ادائیگی بھی آنی چاہیے, سمجھانا بھی آنا چاہیے, اس کا تلفظ بھی آنا چاہیے, تو میرا بس ایکسپلینیشن بھی آنی چاہیے. میرا ایک چھوٹا سا یہ پوائنٹ تھا کہ 68 ایئرس آئی ایم اولڈ,
تو 68 ایئر سے جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں تو اس کی تصحیح بہت مشکل سے تھوڑی بہت ٹھیک ہوئی ہے ایک پارہ پڑھ کے, اور وہ ایسی زبان پہ وہ چیزیں چڑھی ہوئی ہیں کہ وہ بار بار پڑھنے سے بھی الحمدللہ کافی ہوئی ہے, بہتر ہوئی ہیں, لیکن بعض دفعہ بالکل بھول جاتا ہے کہ یہاں ہم نے اس طرح کرنا تھا, تو پھر غلطی ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں, دیکھیں ہر چیز کو ٹائم تو لگتا ہے. بچے بھی جب سیکھتے ہیں تو کون سا پہلی ہی جماعت میں جا کے ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں. وہ پہلی جماعت سے جو چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں جا کے اس کا رزلٹ ہمیں میٹرک میں جا کے نظر آتا ہے کہ انہوں نے آخر ان 10 سالوں میں کیا تعلیم حاصل کی ہے. کیا, یا آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ ایک بچہ جو کلاس 1 سے اپنی پڑھائی اسٹارٹ کرتا ہے, جا کے یونیورسٹی میں جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اچھا اس نے اب اتنی سالوں کی محنت کے بعد اس نے انجینئر بننا تھا, ڈاکٹر بننا تھا, کہ اس نے کوئی اور کام کرنا تھا. تو یہ چیزیں یعنی چاہے وہ بچپن سے ہو, چاہے وہ آپ زندگی کے کسی بھی عمر سے سٹارٹ کریں, کچھ وقت تو یقینی طور پر لگنا ہوتا ہے جس میں آپ محنت سے گزرتے ہیں. آپ چاہے ڈرائیونگ کرنا سیکھیں, چاہے آپ کوکنگ کرنا سیکھیں, آپ سوئمنگ سیکھیں, کچھ بھی سیکھیں, تو کبھی نہ کبھی تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے, اور پھر وہ 2 سال 3 سال 4 سال آپ کے لگتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے پریشان نہ ہو, آپ بھول جاتی ہیں, آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے کرتے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. مگر اس میں ہمت نہیں ہارنی, بس صبر کے ساتھ چلتے رہیں. جی جزاک اللہ. وعلیکم السلام, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آخر ہم نے مخرج کی کلاس لینی ہے, تو مخرج کہتے کیسے ہیں؟ جی کوئی بہن بولیں گے مخرج کسے کہتے ہیں؟ یہ مخرج جو ہے حرف کے نکلنے کی جگہ. ہینڈ ریس کا, تاکہ جو ہے نا وہ مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے, جو بولنا چاہے وہ اپنے ہینڈ ریس کریں تاکہ اوکے. تو مخرج جو ہے, آپ نے مجھ سے کہا کہ مخرج جو ہے وہ کیا ہے, نکلنے کی جگہ ہے. کہیں کبھی بورڈ پہ لکھے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ جی ٹریفک کے جہاں پہ وہ مخرج لکھا ہوا رہتا ہے, مخرج مخرج لکھا ہوا رہتا ہے, کہاں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے؟ عرب کنٹریز میں جہاں سے ایگزٹ رہتا ہے, ایگزٹ کی جگہ پہ. بالکل صحیح, ایگزٹ کی جگہ پہ. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ سعودی عرب میں آپ رہیں تو عرب کنٹریز میں رہیں تو آپ کو مخرج جو ہے مختلف جگہ پہ روٹس پہ یا روڈ پہ جو ہے دکھائی دیتا ہے. نظر آتے ہیں کہ آپ یہاں سے ایگزٹ لے لیں. مقصد یہ ہوتا ہے. تو مخرج کا معنی کیا ہوا؟ نکلنے کی جو جگہ ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. تو کیا ہے مخرج؟ از دا پوائنٹ آف ایگزٹ, جہاں سے آپ نے ایگزٹ لینا ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا مخرج ہے. مخرج کی جو جمع آتی ہے وہ کیا ہے؟ مخارج. اصطلاحی معنی دیکھیں, یعنی لنگوسٹک کے بجائے اپلائیڈ ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں اس کی, تو اپلائیڈ ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ جس جگہ پر حرف کی آواز ختم ہوتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں. یعنی it is a point where the sound of letter ends. اب یہ کیا مطلب ہے کہ لیٹر ends جہاں پہ ہوتا ہے, کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا ڈیفینیشن سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہینڈ ریس کر کہتے ہیں کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے جو بتایا جا رہا ہے نا, یا پہلے جو آپ نے کہا ہے بات, مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو حرف ہے وہ منہ کے کس حصے سے نکل رہا ہے. ویری گڈ. یعنی مثال کے طور پہ آپ اس کو سمجھتے ہیں یہاں پہ کہ مثال کے طور پہ آپ اس پکچر کو دیکھیں اور اس میں یہ دیکھیں, مثال کے طور پہ ہونٹ ہی لے لیتے ہیں. ہونٹ سے کیا نکلتا ہے؟ لیٹر بار نکلتا ہے, بال نکلتے ہیں. واو میم ماشاء اللہ. ابھی ہم با کو دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ حمزہ اور با ساکن پڑھنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ دونوں ہونٹ کو یہاں پہ ملائیں گے, آواز کیا آئے گی؟ اب یہ جو یہاں پہ آ کے آواز کیا ہوئی؟ رک گئی. یہاں پہ آ کے آواز کیا ہوئی؟
रुक गई, तो जहां जाके आवाज यानी साकिन हर्फ को, यानी जब हम मखरज देखते हैं तो कैसे देखते हैं, मखरज के लेटर के ऊपर साकिन करके देखते हैं कि वो कौन सी जगह है जहां से हर्फ निकलता है। जब आप अब बोलेंगे तो क्या होगा, आवाज यहाँ पे आके होठों के पास आके रुक जाएगी। तो ये मतलब है कि जिस जगह पे हर्फ की आवाज आकर रुक जाए वो मखरज। कैसे मखरज है, हम तो कह रहे हैं कि निकलने की जगह, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये तो आवाज रुक रही है यहाँ पे। तो आप ये देखें कि अगर जब आपने बा या बी या आपने बू बोलना है तो क्या करेंगी आप, फिर यकीनी तौर पे आप क्या करेंगी, ये जो आपका पॉइंट है, अब आप क्या करेंगी, यहाँ से आप इसको खोलेंगी, इसको अलग करेंगी, तो आवाज क्या निकलेगी, इसी पॉइंट से निकलेगी, बा बी बू। ऐसा ही है? जी मैम ऐसा ही है। ठीक है, तो हमने क्या जी। पढ़ा कि असल में मखरज क्या है, कैसे मालूम किया जाता है। वर्ड को साकिन करके, वर्ड को, लेटर को, वर्ड नहीं लेटर को, मखरज क्या है? साकिन करके, हाँ यानी वो, हाँ हर्फ को मखरज निकलने की जगह को कहते हैं, इसकी जगह मखारिज आती है। और इस्तिलाही मायने क्या है कि जिस जगह पर यानी जिस पॉइंट पर हर्फ की आवाज खत्म होती है वो क्या होता है, वो मखरज होता है। क्या होता है वो, मखरज होता है। वो मखरज होता है। यानी इट इज अ पॉइंट वेयर द साउंड ऑफ लेटर, किसकी आवाज, लेटर की आवाज खत्म होती है, एंड्स, यहाँ पे स्टॉप होती है, आवाज रुक जाती है, खत्म हो जाती है, वही उसका मखरज होता है। अरबी ज़बान में हम जब ये कुरान मजीद पढ़ते हैं तो इसके कितने हमारे पास मखरज हैं, तो हमारे पास जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है वो कितनी है, कितनी है 17 नहीं, ठीक है वो बात भी सही, वो हर्फ है। मेन हम देखेंगे पहले असूलुल मखारिज, यानी मेन मखरज कौन कौन से हैं। जब भी हमने एग्जैक्ट पॉइंट पढ़ा था ना, फाइव, तो मेन मखरज या मखारिज और रईसिया जैसे अरबी में कहते हैं, तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से हैं ये 5? हलक, ज़बान, और जौफ, खशूम नहीं, खैशूम, ठीक है। खैशूम क्या है, नाक का बासा या नेजल कैविटी, ये आपने एक कह दिया, नंबर 1, ठीक है। दूसरा मखरज क्या है आपका, अल-लिसान, अच्छा अल-जौफ। जौफ क्या है, मुंह का खाली हिस्सा। और जब हम मुंह का खाली हिस्सा कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मुंह का ये वाला हिस्सा भी खाली है और ये जो हल्क है ना आपका, ये हिस्सा भी इसमें शामिल है। हल्क और मुंह दोनों मिलाकर जो है वो जौफ बनता है। जौफ कैसे बनता है, हल्क और मुंह मिला के, हलक और मुंह का खाली, हल्क और मुंह का खाली हिस्सा जौफ कहलाता है। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हमारे पास क्या है, हल्क, शफातान, तीसरा हमारे पास हल्क। 4th हमारे पास लिप्स या होंठ या शफातान यानी 2 कहते हैं कि ये 2 होंठ होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, मिला के शफ नहीं शफातान, लिप्स या होंठ। और 5वां आर्टिकुलेशन अल-लिसान, मेन 5 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स या 5 असूलुल मखारिज जो हैं वो कौन कौन से हैं, अल-जौफ, अल-हलक, अल-लिसान, शफातान, अल-खैशूम। माशाल्लाह।
तो दांत नहीं आएंगे? नहीं, दांत इसमें नहीं आते होंगे, यानी इसका कोई अलग से मखरज नहीं होता वो दांत के साथ, ठीक है। जो दांत के साथ टच करते हैं वो आपके लिसान के साथ ही आते हैं, लिसान ही दांत के साथ टच करती है ना, ठीक है। ठीक है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भी वही चीज है, लेकिन इसके साथ साथ आपको लेटर्स नजर आ रहे हैं। कौन बताएगा कि कितने लेटर्स होते हैं? 29 या 28 तजवीद की रूल से 29 29 है 28 जी। या 29? 20 तजवीद की रूल से 29 29 है। अच्छा चलें, इसमें जितने लिखे हुए नजर आ रहे हैं उसको गिन लें। मिस हमजा और अलिफ को एक ही माना जाता है। हमजा अलिफ दोनों आए तो फिर 29 बने। वरना एक, और अगर उनको एक माना जाए तो 28 है। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो हमजा और अलिफ का आपने कहा कि अगर हम दोनों को एक मान लें तो हमारे पास 28 बन जाएंगे, और अगर हम दोनों को अलग अलग माने तो हमारे पास 29 बन जाएंगे। 29 तो हरूफ तहज्जी जब लिखी हुई होती है अलिफ से लेकर या तक, तो उसमें एक मिनट मैं शो करना चाहती हूँ आप लोगों को, रखिएगा। अगर मेरे पास वो पेज तो ये आपको लेटर्स नजर आ रहे हैं। कितने हैं ये लेटर्स? 29 29। इसका मतलब है कि आपने इसको 1 काउंट किया है ना, और इसको भी काउंट किया अलग, ऐसे ही है ना जी। इसको आप क्या जी। पढ़ते हैं? अगर खाली हो तो अलिफ पढ़ते हैं, अगर उस पर हरकत आ जाए तो फिर हमजा पढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाए तो हम इसको हमजा पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा केस जो है वो डिफरेंट है, और वो मैं आपको शो करती हूँ यहाँ से। इसकी पिक्चर भी आपने देख ली है, और मैं आपको शो करती हूँ। अब यहाँ पे जो हर्फ लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, इसमें आप क्या पढ़ेंगी? पहला क्या है और बाद में क्या है? ये जबर पढ़ेंगे आप। ये नहीं, हमजा 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 तो अलिफ दिए। हमजा भी सूरत डली। हमजा बात आसा। ओके, आए हम पढ़ के देखते हैं कि इसको क्या पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं इस पर लिखा हुआ क्या है। हमजा अलिफ। हमजा अलिफ, हमजा ही पढ़ा जाएगा ये। ओके। कौन पढ़ना चाहेगा हरूफ की तादाद? 15 है? नहीं 15 नहीं है, यहाँ पर 29 लिखे हुए हैं। अरबी हरूफ हिजा 29 है। 29 है। जिन्हें इमाम नसर बिन आसिम लैथी जी लैथी ने खत में मुशाबहत के एतबार से मुरतब किया है, और उन पर नुक्ते भी लगा दिए हैं ताकि मिलते जुलते हरूफ में फर्क हो सके। तो ये जो है आपको, यानी ये मिलते जुलते, ये एक साथ लिखे, ये मिलते जुलते, ये मुशाबहत के एतबार से उन्होंने साथ साथ लिखे। इस तरीके से इन्होंने इसकी तरतीब बनाई थी। तो इन्होंने कितने हर्फ लिखे हैं? 29। लेकिन बात ये कि जो पहला लेटर है, पहला लेटर है हरूफ हिजा के शुरू में आने वाला अलिफ, क्या कहलाता है? हमजा होता है। और अलिफ मद्दा कौन सा हर्फ है? आखिरी से पहला वाला हर्फ है, और इसे ला कह दिया जाता है क्योंकि वो हमेशा साकिन ही होगा, और इसका मा कबल यानी इससे पहले वाला हर्फ हमेशा मफ्तू होगा। यानी हमारी जब हम कायदा पढ़ते हैं अपने उर्दू का, तो उसका अंदाज थोड़ा सा
डिफरेंट होता है, हम उसको सिर्फ अलिफ पढ़ते हैं और जो आखिर में से पहले आने वाला होता है उसको हम यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं, हमजा, और इसको हम पढ़ते हैं अलिफ, ठीक है। लेकिन अरबी कायदे के हवाले से या अरबी मुसहफ के हवाले से जो बात हमारे सामने आती है वो क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। बात तो एक ही है, इतने कोई खास परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन जब हम बहुत सी तजवीद की बुक्स पढ़ते हैं तो फिर हमें डिफरेंस नजर आता है, फिर हम समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने कहा कि इस चीज को भी हमें बयान करना चाहिए। तो हरूफ हिजा के शुरू में आने वाला जो अलिफ लिखा होता है, जैसे कि आपने इस वक्त इसमें देखा, तो ये क्या लिखा है, ये अलिफ है, ये सॉरी हमजा है, और ये अलिफ मद्दा है। ये भी आप कायदे में पढ़ते हैं इस तरीके से ला लिखा हुआ, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ये इस तरह से क्यों लिखा हुआ होता है। तो ये जो है वो क्या है, ये अलिफ मद्दा की पहचान है, क्योंकि ये क्या है, इसे ला कह दिया जाता है क्योंकि वो हमेशा साकिन ही होगा, और इसका मा कबल यानी इससे पहला वाला हर्फ हमेशा मफ्तूह होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब आगे हम चलते हैं कि इस तरह से हमारे पास कितने लेटर्स बन जाते हैं, 29, ठीक है, 29 लेटर्स है हमारे पास। अब हमने मेन मखारिज पढ़े थे कि ये 5 जो है हमारे मेन मखारिज है। इन में क्या होता है, जैसे आपके ये लिप्स हैं, तो लिप्स में मजीद कितने एग्जिट पॉइंट हो सकते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये जबान है, तो इसमें से मजीद कितने एग्जिट पॉइंट निकल सकते हैं। नून और मीम का यानी नोज से निकलने वाले जो लेटर्स हैं, लेटर्स अलग चीज है, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे एग्जिट पॉइंट मौजूद है। ठीक है, जैसे आपको आज हम जॉफ हमने पढ़ना है आज इंशाल्लाह, और हमने थ्रॉट पढ़ना है, हल्क पढ़ना है। तो अगर हम हल्क में देखें तो हमें पता चलता है कि इस हल्क के अंदर कितने एग्जिट पॉइंट हैं, सब एग्जिट पॉइंट कह लें आप, तो ये 1, 2 और 3 अलग मखरज हैं, ये 3 अलग एग्जिट पॉइंट हैं। यानी हल्क का मतलब ये नहीं कि ये पूरा हल्क यहाँ से यहाँ तक है तो इनमें से कहीं से भी 3, 6 के 6 लेटर्स निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या है, इसके निकलने की जगह अलग है, इसके निकलने की जगह अलग है, इसके निकलने की जगह अलग है। तो इस तरह से हल्क एक मेन आर्टिकुलेशन पॉइंट है जिसके अंदर मजीद सब एग्जिट पॉइंट मौजूद हैं, मजीद छोटे निकलने की जगह मौजूद है। ठीक है, ये क्लियर है ये बात? जी मैम, क्लियर जी। अब इसी में हम ये भी देख रहे हैं साथ साथ कि ये जो आपको 5 मेन मखरज नजर आ रहे हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, क्या मतलब है, अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि जो हर्फ होता है वो कैसे बनता है। हर्फ ऐसी आवाज को कहते हैं जिसकी बुनियाद मखरज मुहक्कक पे हो या मुकद्दर पे हो, ये भी मैं समझाऊंगी। जैसे भी letter is a sound that depends on मखरज मुकद्दर और मुहक्कक। हुआ सऊद यातमिदु अला मक्ता मखरज मुहक्कक और मुकद्दर। क्या मतलब है, यानी ये जो हम अभी मखरज पढ़ रहे थे, 5 हमने मखरज पढ़े, मेन मखरज 5 पढ़ेंगे, लेकिन इन 5 मखरज को हम मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। किसमें? एक मुहक्कक में, एक मुकद्दर में। यानी ये मुख्तलिफ टाइप है मखरज की। अभी मैं समझाती हूँ। अब यूं देखिए इसको कि मुहक्कक और मुकद्दर होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है। तो मुहक्कक का वर्ड अगर देखें तो जिसे हक, यानी अब जो मैं बात कह रही हूँ आपको याद कराने के लिए समझा रही हूँ, ये किसी आपको तजवीद की बुक में नहीं मिलेगा और हो सकता है कोई भी ना समझाए इस तरह से। तो ये एक याद करने वाला आइटम है सिर्फ, कि आपको ये बात याद कैसे रहेगी। ठीक है, इसका कोई रूल से या इस तरीके से कोई खास ताल्लुक नहीं है। देखिए हक क्या होता है? सच होता है, सही होता है, सच, हक, कंफर्म चीज, कंफर्म चीज।
कंफर्म हाँ। चीज अदा के करना। अलावा अदा करना, हक हक अदा यानी करना। किसी चीज के ऊपर आपका हक होता है। ये मिसाल के तौर पे अगर आप किसी घर के मालिक हैं तो उस घर पे किसका हक होगा? जो आप उसका मालिक होगा। मालिक जो को तो उसका मालिक हमारा ही हक होगा। ठीक है उसका ना? ओन देगा। तो उस घर, जिस घर के आप मालिक हैं, उसकी एंट्रेंस पे भी आपका ही हक होगा और उसके एग्जिट पे भी आपका ही हक होगा, ऐसा ही है। जी जी ऐसे ही है। ये तो नहीं होगा कि आपके दोस्त हजरात या मोहल्ले वाले जब चाहें आए और जाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मतलब क्या है मुहक्कक का कि हर लेटर यानी जो भी मुहक्कक लेटर्स हैं, जो लेटर्स भी मुहक्कक लेटर्स हैं, उनका अपना एक घर है, उनकी अपनी एक प्लेस है जिसको कोई ले नहीं सकता। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर कौन सा मखरज नजर आ रहा है? कौन बताएगा ये मखरज है? यहाँ पे इस मखरज से कौन से लेटर्स अदा होते हैं? अलिफ अलग जी हरूफे हाँ, हल्की, ये हरूफे हल्की, मैं इधर पॉइंट कहाँ बना रही हूँ? ता तो हरूफे दाल हल्की। दाल इधर ता से ता दाल ता, ता दाल, दाल और दा। नहीं, ता नहीं तो एंड दाल। तो वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि ये इनका आर्टिकुलेशन पॉइंट है, ये मुहक्कक लेटर है, ये इनका हक है कि वो यहाँ से निकलें। ठीक है, ये इनका हक है कि यहाँ से इनको निकाला जाए। अगर हम इन लेटर्स को यहाँ से नहीं निकालते तो हम इसका हक अदा नहीं करते, या हम इन लेटर्स की जगह पे से नून निकालने की कोशिश करें, दौद निकालने की कोशिश करें, बा निकालने की कोशिश यहाँ से करें, तो क्या मतलब है कि हम इसका हक अदा नहीं कर रहे, क्योंकि ये किसकी प्लेस है, किसका घर है? ये ता दाल और ता का घर। ये इनका हक है कि यहाँ पे, यहाँ से ये 3 लेटर्स निकले। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? जी सिस्टर। जी। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अब जीम शीन या है, उसका मखरज क्या है? मुंह का हानि जुबान का लिखना, सेंटर और तालू का सेंटर। तालु का सेंटर और तालु बिल मुताबिक तालु का सेंटर। शाबाश। ठीक है, यहाँ से आपकी जीम शीन और या निकलती है, तो ये एक मुहक्कक लेटर है, हक रखने वाला लेटर है। जब आप अज बोलना चाहती हैं या अश बोलना चाहती हैं तो क्या होता है कि 2 पॉइंट्स आपस में टकराते हैं। इसका मतलब क्या है? मुहक्कक का ऐसी जगह जो कि मुतय्यन हो, जो स्पेसिफाइड हो, जो एक चीज दूसरे से जाके टकरा रही हो, तो वो आपको पता चल जाती है कि अच्छा ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे आवाज आके रुकती है, ये इसका मखरज है। तो ऐसा मखरज जिसके आवाज के रुकने पे 2 चीजें आपस में टकरा रही हो। जिनको खांसी आ रही है प्लीज अपनी माइक म्यूट कर लें। ठीक है, ये आपकी आवाज जो है वो फिर यूट्यूब पे भी जाएगी और शायद आपको कुछ सुनने में अच्छी नहीं लगे। ओके, तो ये जो हम बिस्मिल्लाह जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो भी लेटर आप अदा करना चाहते हैं उसकी अदायगी पे जब आवाज जिस पॉइंट पर खत्म होती है वो क्या है? वो उसका हक है, वो उसका घर है, वो उसका आर्टिकुलेशन पॉइंट है। जब मिस नाइला जी अस्सलाम वालेकुम। मिस नाइला खलील जी जिनका माइक म्यूट नहीं है और जिनके पास अजीब गरीब से आवाज आ रही है, काइंडली प्लीज उनका माइक को म्यूट कर दो। जी जी इस तरह की डिस्टर्बेंस से ना भूल जाता है बंदा कि बोल क्या रहा था। अल्लाहु अकबर। कोई मुझे याद कर दिलाएगा? आप कह रही थी ना कि ये एंड पॉइंट होता है उसका। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो जो जब आप अज बोलना चाहते हैं या अश बोलना चाहते हैं, तो जिस जगह पे आपकी जबान जाके टकराती है, जहाँ पे वो लेटर की आवाज एंड हो रही होती है, वो क्या होता है? वो मखरज मुहक्कक होता है, यानी वहां पे आप महसूस करते हैं कि आप किसी एक खास पॉइंट पर मौजूद हैं।
اس کی اگینسٹ میں یا اس کے اپوزٹ میں آپ کے پاس جو مخرج آتا ہے وہ مقدر ہوتا ہے. جو مخرج مقدر ہوتا ہے اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اس کے اپوزٹ ہوگا. اور اپوزٹ کیا ہوگا؟ یعنی کہ وہ پن پوائنٹ اس کا گھر نہیں ہوگا, اندازے یعنی وہ جو ٹکرائے گی نہیں نا دونوں, جو جس طرح آپ نے بتایا نا کہ دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو ایک خاص پوائنٹ پیدا ہوتا ہے, تو وہ کہاں سے نکل رہا ہے, یعنی اس کنفرم نہیں ہوگا. چلے گا نا. اوکے, اب یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے سب نے بڑے اچھی طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی. مقدر مطلب ایک تقدیری لیٹرز ہیں, یعنی جس کے ایک طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ مقدر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ایسے نکلے گا. آپ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ڈھونڈ نہیں سکتے. یعنی مخرج مقدر کا ایسا پوائنٹ ہے جس میں آپ اس کے نکلنے کی جگہ کو ایک سرٹین پوائنٹ پہ چیک نہیں کر سکتے کہ آخر یہ نکل کہاں سے رہا ہے. جیسے الف مدیہ, واو مدیہ, یا مدیہ, وہ کیا ہے, جوف سے نکلتے ہیں نا, منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں, تو وہ پوری اسپیس سے نکل رہے ہیں. یہاں سے آپ بولتے ہیں آ, ای, او, کوئی دو پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو آپس میں اس طرح سے ٹچ کر رہے ہوں ایک دوسرے کو جس سے آپ کو کوئی ایک پوائنٹ کا اندازہ ہو سکے. وہ پورا پیسج یوز کر رہے ہیں, پورا جو ایمٹی اسپیس ہے اس کی منہ کی وہ یوز کر رہے ہیں. کچھ پتا چلتا ہے آ ای او کرتے ہوئے؟ ہاں جی, کسی چیز کو کوئی چیز پتہ آپس میں چلتا. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ پوائنٹ آپ کا نکلا چلا جا رہا ہے. یعنی اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک جگہ پہ آ کے آواز آپ کی رک سی جاتی ہے. آپ اش بولنا چاہتے ہیں, آپ اج بولنا چاہتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ جو حرف کی جو آواز ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ آ کر پوائنٹ پر رک جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں آپ نے آ ای او نکالا تو وہ نکلتی چلی گئی, کسی ایسا پوائنٹ پہ نہیں پتا چلتا کہ وہ رک رہی ہو, کوئی اس کا کوئی اپنا کوئی گھر ہو جہاں پہ وہ سٹاپ کر رہی ہو. ایسا ہی ہے. جی 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 باجی. اسی طریقے سے مقدر مخرج نون اور میم کا بھی ہوتا ہے. نون اور میم کا کیا چیز ہوتا ہے؟ نون اور میم کا جو غنہ ہوتا ہے, جو ناک سے نکلتا ہے, جو خیشوم جس کو کہتے ہیں, تو جب ہم بولتے ہیں ثم کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے اس جگہ سے غنہ نکالا, یا اس جگہ سے, یا اس جگہ سے, یا اس جگہ سے, یا اس جگہ سے؟ ایسی کوئی فیلنگ ہوتی ہے؟ وائٹ فیل ہوتی ہے, یعنی ایک پوری چوڑائی کو پوری اسپیس ہے نا, پوری اسپیس جو ہے وہ آپ کی ناک کی وہ لے لیتا ہے. اسی طرح میم کا ہو یا نون کا ہو, ان, ان, تو یہ پوری ناک میں آپ کی آواز موجود ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک اسپیسیفک پوائنٹ کو کہہ سکیں کہ نہیں اس پوائنٹ پہ رکھنا ہے اور اس پوائنٹ سے نکالنا ہے, اس پوائنٹ سے نکالنا ہے, اس پوائنٹ سے نکالنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مخرج مقدر کون سے ہوں گے ہمارے پاس. اس سے پہلے کہ میں آپ کو خود بتاؤں, اب آپ مجھے یہ بتائیں. الخیشوم. شاباش, ویری گڈ. کہ یہ خیشوم ہمارا اور جوف ہمارا, یہ دو ایسے پوائنٹس ہیں, دو ایسے مخرج ہیں جن کو مخرج کیا کہا جاتا ہے؟ مخرج مقدر. مقدر. شاباش. تو دو طرح کے ہمارے پاس مخارج ہیں ابھی, جن کو جو ایک مقدر ہے اور ایک محقق ہے. جو محقق ہے وہ ڈیپینڈ کس کے اوپر کرتا ہے؟ ایک اسپیسیفائڈ اسپاٹ کے اوپر, ایک پرٹیکولر پوائنٹ, متعین جگہ جو ہے وہ محقق کے لیے استعمال ہوتی ہے. جبکہ مقدر جو ہے وہ کوئی بھی اسپیسیفائڈ اسپاٹ کو استعمال نہیں کرتا, یعنی نکلنے کی جو جگہ ہے وہ متعین ہی نہیں ہے, وہ پورا حصہ استعمال ہو جاتا ہے. تو دو آ جاتے ہیں ہمارے پاس مقدر میں, منہ کا خالی حصہ جس سے نکلنے والے حرف الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ ہیں. دوسرا مخرج ہمارا خیشوم ہے, جس سے نون اور میم کا صرف اور صرف غنہ نکلتا ہے. نون اور میم خود نکلتے ہیں یا صرف غنہ نکلتا ہے؟ صرف غنہ نکلتا ہے. نکلتا ہے, اور تو یہ ہونٹ سے بھی نکلتا خیشوم کا آتا ہے. نہیں, مجھے دونوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی. دو بہنوں نے کچھ بولا ہے, ایک ہونٹ کا کچھ ذکر کر رہی تھی اور ایک پتہ نہیں. بولیے.
سسٹر لام اور نون کا مخرج جو ہے وہ جدا جدا ہے، لیکن الخیشوم میں جو ہے ہم جب غنہ کرتے ہیں تو پھر نون اور میم دو اکٹھے اس میں آتے ہیں. دیکھیں یہ بات الگ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، اس وقت آپ یاد کرنے کے حوالے سے آپ یہ یاد کریں گے کہ نون اور میم کا غنہ جو ہے وہ ناک سے نکلتا ہے. جی ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت یہ نہیں یاد کرنا یا لام اور یہ لام نہیں، یہ نون لکھا ہوا ہے، نون اور میم لکھا ہوا ہے. تو نون اور میم کی جو لیٹرز ہیں وہ بے شک ان کے مخرج الگ ہیں، لیکن ان کا غنہ صرف اور صرف ناک سے نکلتا ہے. انہی دو لیٹرز میں غنہ پایا جاتا ہے. جی اوکے، باقی جو 3 مخرج تھے اس میں سے ایک حلق ہے جس میں سے 6 حرف نکلتے ہیں، دوسرا مخرج 2 ہے، دوسرا مخرج ہمارا ہونٹ ہے، لپس ہیں، جس میں سے نکلنے والے حرف کی تعداد 4 ہے، اور تیسرا مخرج ہماری زبان جس سے نکلنے والے حروف کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے؟ 18. اگر آپ کو مشکل نہ لگے تو ان کے سب ایگزیکٹ پوائنٹ کتنے ہیں؟ حلق میں سب ایگزیکٹ پوائنٹ یا مخرج جو ہے وہ 3 ہیں، ہونٹ میں 2 ہیں، جبکہ زبان میں آرٹیکولیشن پوائنٹ جو ہے وہ 10 ہے. 10 ٹھیک ہے، 10 آرٹیکولیشن پوائنٹ میں سے 18 لیٹرز نکلتے ہیں، 2 مخرج ہونے سے 4 حرف نکلتے ہیں، 3 مخرج کے ساتھ 6 حرف حلق سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ایک سیکنڈ رکھیے گا جی، ہم پڑھتے ہیں اس میں جوفیہ مخرج کو. اور جوف سر نے کیا بتایا کہ کون کون نکلتے؟ الف واو اور یا. الف مت یا مت مدیہ ہوا ہے. سسٹر شہانہ، مدیہ. ٹھیک ہے، جب بھی ہم یہ بات بولیں گے تو الف واو اور یا نہیں بولیں گے، بلکہ ان کے ساتھ ہمیں کیا بولنا پڑے گا؟ الف مدیہ، واو مدیہ اور یا مدیہ. یا مدیہ. کیونکہ واو جو زبر زیر پیش کے ساتھ آتی ہے، جو یا زبر زیر پیش کے ساتھ آتی ہے، ان کا مخرج مختلف ہے. ٹھیک ہے، وہ جوف سے نہیں نکلتے. ٹھیک ہے، اوکے. اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جوف سے نکلنے والے 3 لیٹرز ہیں، الف مدیہ، واو مدیہ اور یا مدیہ. اور میرے خیال سے سب لوگوں کو خیال یہ ہوگا کہ سب سے آسان یہی مخرج ہوتے ہیں، کیونکہ ویسے ہی مقدر مخرج ہیں، خود بخود ہی نکل جاتے ہیں، کوئی چیز ڈھونڈنی نہیں پڑتی، کوئی زبان کہیں پہ جا کے لگانی نہیں پڑتی. کیا خیال ہے؟ لیکن بہت مشکل سے نکلتے ہیں. سب سے مشکل یہی ہے ہمارے لیے. اوکے، باقی لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سسٹر ساری مسٹیک ہی اسی میں آتی ہے نکل پڑھتے ہوئے. میں آپ کو شاباش کہہ رہی ہوں کہ اس کی اصل میں ضرورت کیا ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی. کیوں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ الف مدہ میں یا واو مدہ اور یا مدہ کو میں اس کی پکچر کو غور سے دیکھیں اور 3 سٹیپس آپ نے یاد رکھنے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ چلیں جی یہ مقدر لیٹرز ہیں اور یہ نکلنا شروع ہوتے ہیں تو الحمدللہ نکل جاتے ہیں نا، یہاں سے آپ کے حلق سے نکلنا شروع ہو گئے. لیکن اس میں آپ اگر یہ دیکھیں تو آپ کی یہاں پر جو زبان ہے وہ کیا ہے؟ اوپر ہے، نیچے ہے، اٹھی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، سو رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ نیچے ہے، ریلیکس پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. نیچے ہے، نہیں بیٹھی ہے، ریلیکس پوزیشن میں ہے، راحت میں ہے، آرام سے. یعنی جو نارمل اسٹیٹ ہوتی ہے زبان کی جب آپ منہ بند کرتے ہیں اسی اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے، آپ کی یہاں سے آپ کا جو حلق ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے، یعنی آپ نے ایک دم سے اس کو ٹائٹ نہیں کرنا. بیچ میں سے اٹھا ہوا ہے؟ نہیں بیچ میں سے نہیں. اوکے، یہاں پہ دیکھیں اس کو، ہونٹ اگر آپ دیکھیں اس کے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کتنے کھلے میں؟ اگر میں آپ کو آپ کے سامنے فنگر بناؤں تو آپ مجھے بتائیں کہ
1 2 वन हाँ जी पहली वाली ऊपर वाली पहली पोर पहली फिंगर वन पहली फिंगर पोर, ठीक है। पहली फिंगर नहीं, पहली पोर जो है सिर्फ आपने उस पार्ट तक इसको खोलना है, इससे ज्यादा आपने अपने मुंह को नहीं खोलना। अगर आप अपने मुंह को इससे ज्यादा खोल लेते हैं तो आवाज वैसे ही क्या होती है कि आपकी थोड़ी थोड़ी सी जबान पीछे से उठना शुरू हो जाती है और आवाज आती है आ। तो ये आ की आवाज नहीं चाहिए। ये जो हमने कहा ना पीछे से कि अलिफ मदिया के वक्त आपके ये जो वोकल कॉर्ड्स है ना ये आपके बंद होने चाहिए, यानी इसके अंदर सांस की आवाज नहीं होनी चाहिए। यानी सांस की आवाज कैसे होती है, जैसे बाज़ औक़ात स्टूडेंट से आप सुने तो उनकी मुसलसल आवाज में एक सांस होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई वर्ड आप मुझे बताएं, जैसे हम काला ही पढ़ना चाहते हैं, काला हा, यानी सांस के अंदर हा की साउंड भी साथ साथ सुनाई देती है। जैसे आप बा पढ़ना चाहते हैं तो आवाज जैसे हा भी साथ निकल रही है। तो ये चीज हम्स वाली यानी सांस वाली हमें नहीं चाहिए होती। ना ही हमें ये चाहिए होता है कि आवाज जो है पीछे से उठ के नाक की तरफ चली जाए और बा सा आ, ये वाली आवाज नाक में जाने वाली आवाज भी नहीं होनी चाहिए। तो जब आपके वोकल कॉर्ड्स बंद होंगे तभी आपकी आवाज क्लियर सुनाई देगी। जैसे काला, या आप सीन के साथ बारीक लेटर पढ़ना चाहते हैं स, लेकिन ये आवाज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्या करना है हमने? वोकल कॉर्ड बंद करनी है। बंद होंगे तो एक मर्तबा जबान का पोजीशन बताएं उस्तादा। देखिए अलिफ की अदायगी के वक्त जबान राहत की हालत में रहती है, यानी रिलैक्स पोजीशन में रहती है, पीछे से उठी भी नहीं होती। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, एक मिनट वापस आती हूँ मैं आपके पास। दूसरी चीज क्या है कि आपने मुंह की पोजीशन को, होठों की पोजीशन को ना तो गोल करना है और ना ही एक पोर से ज्यादा खोलना है। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि वोकल कॉर्ड्स जो हैं इससे आपकी सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अलिफ मदिया में सांस नहीं होती और कुछ बहनों की सांस के अलावा क्या चीज निकल आती है कि आवाज नाक में चली जाती है। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा मिसाल के तौर पे, और भी लफ्ज जैसे लाम है, मिसाल के तौर पे लफ्ज लाम कैसे लिखते हैं, लाम अलिफ और मीम। आप कोई पढ़े लाम ला ला, ये कहाँ जा रही है आवाज? नाक में जा रही है, नाक के अंदर, नाक में जा नाक रही है। तो हमने अलिफ मदिया पढ़ते हुए इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आवाज में ना सांस हो ना आवाज नाक में जा रही हो। होंठ आपके सीधे खुलेंगे और एक पोर से ज्यादा नहीं खोलेंगे, पीछे से जबान नीचे ही रहेगी। जी, कौन मुझे रिवाइज करके बताएगा कि हमने क्या पॉइंट्स लिखे, आपने क्या नोट किए? मैं बताऊं सुमेरा? जी सुमेरा, जी सुमेरा बता रही है। ठीक है। अलिफ मदिया में जुबान पीछे से राहत की हालत में होगी, यानी कि जो हमारी नॉर्मल जुबान होती वो हलक खुला हुआ होगा, होंठ भी नॉर्मल एक पोर के जितने खुलेंगे, सांस नहीं चलेगा यानी कि वोकल कॉर्ड्स बंद हों और ना ही आवाज नाक में जाए। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है जी, तो यह सब अपने पास इसको नोट कर लें। जबकि वाव मदिया, वाव मदिया में क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स तो इसमें भी बंद होंगे, इसका भी कोई काम नहीं है वोकल कॉर्ड्स का। यहाँ से जब आवाज निकलेगी तो आपकी जबान पीछे से उठ जाती है। ठीक है, ये उठी हुई आपको नजर आ रही है, रिलैक्स नजर आ रही है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है ना? नहीं आ रहा? जी जी यार नजर आ रहा है, आ रहा है जी।
होठ बिल्कुल गोल आगे से होठ कितने गोल हैं? थोड़े से? नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत पेट ज्यादा। पूरे गोल है, बहुत ज्यादा, पूरे गोल है, बहुत ज्यादा गोल पूरे है। कमर गोल है। पूरे गुलाई गोल है। इसके लिए कोशिश करें कि आप लोगों को आदत नहीं है तो कुछ ऐसे जो है ना स्ट्रॉ के साथ आप लोग जूस वगैरह पिए, नहीं तो पानी ही पी लें जो लोग डाइटिंग पे हैं, ठीक है। या शरबत जब पियेंगे रमजान में तो स्ट्रॉ का यूज करें। और फिर आप ये देखें, और स्ट्रॉ यूज करें छोटा वाला, पतला वाला, मोटा वाला नहीं, ठीक है। वो जो पल्प वाले जूसेस के साथ स्ट्रॉ आते हैं ना, वो वाला नहीं, जो थिन होते हैं उन स्ट्रॉ को यूज करें। और अपने होंठ को देखें कि क्या आप अपने होंठ को इतना छोटा करके गोल कर सकते हैं। यकीनन कर सकते हैं, हम सभी जूस पीते हैं या कुछ ना कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉ का। तो जब उसको पीने के लिए आप समझ सकते हैं कि जितना स्ट्रॉ है उतना ही आपको मुंह खोलना पड़ता है, उससे ज्यादा अगर आप मुंह खोल के रखेंगे तो जूस तो आपके मुंह में नहीं आएगा। इसी तरीके से इस बात को ज़हन नशीन करें कि अगर आप वाव मदिया की सही आवाज निकालना चाहते हैं तो आपको अपने होठों को अच्छे से छोटा सा गोल बनाना पड़ेगा, तो ही सही वाव मदिया निकलेगा, अदरवाइज सही से वाव मदिया नहीं निकलेगी। समझ आ रही है बात? मिसाल के तौर पे हम क्या देख सकते हैं, क लू लू, अपने होठ देखें इस तरह से बना के पढ़े। वेरी गुड। अगर आप अच्छे तरीके से गोल नहीं करेंगे तो आवाज क्या आएगी? लो, लो, लाऊ, लू। अगर आपकी आवाज नहीं पढ़े नहीं, गौर गौर करें, अगर आपकी वाव मदिया नाक में चली जाती है तो आपको कैसे आवाज आएगी? तो आपको आवाज आएगी कालू। आवाज महसूस हो रही है नाक में? जी तो हमने याद रखना है कि वाव मदिया के वक्त भी आवाज को नाक में नहीं लेके जाना, सीधा स्ट्रेट गोल अपने होठ करने के एक जैसे, यानी ऐसे में भी नहीं करना। यानी आपका बड़ा सा होठ आपने गोल किया, आहिस्ते आहिस्ते तो लू करते करते आप आहिस्ते आहिस्ते छोटा और छोटा और छोटा करते चले जाएं, ऐसे नहीं। आवाज निकाल के दिखाती हूँ, देखिए आवाज शुरू में कैसी है और फिर आहिस्ते आहिस्ते कैसे होती जाती है। कालू, महसूस हुई आपकी कि शुरू में एक आवाज सही महसूस हुई, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसकी जो डायमीटर था जो होठ का, वो आहिस्ते आहिस्ते छोटे से छोटा होता चला गया, तो आवाज नाक में जाना शुरू हो गई। फिर से देखिए, कालू। ये ठीक है। जी जी समझ आ। यानी इसका मतलब है कि शुरू से ही सबसे यानी छोटा मुंह खोलना है, गुलाई के अंदर बिल्कुल छोटा सा मुंह खोलना है शुरू से ही अल्फाज के अदायगी के दौरान। बिल्कुल शुरू से छोटा खोलना है और सीधा खोलना है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक जो आपकी आवाज है वो एक ही तरह की निकले, वो सीधा स्ट्रेट आपकी। जैसे ये आप स्ट्रॉ देख रहे हैं, इसका डायमीटर एक ही जैसा है ना, ये तो नहीं हो रहा कि आप का डायमीटर जो है वो आहिस्ते आहिस्ते वो कम होते 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 बिल्कुल बारीक हो जाए। तो इस तरह से नहीं करना, एक ही जैसे आपने रखना है होंठ को। क्लियर है? और यही चीज आपने अलिफ मद्दा के लिए भी करनी है। जैसे आप काला पढ़ना चाहती हैं तो ऐसे नहीं होगा काला, ये क्या हुआ? एकदम से आवाज बीच में से बारीक होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जिस अदायगी के लिए मैंने इतना मुंह खोला हुआ था, उसकी मद करते करते मैंने क्या किया, होंठ को या तो बंद कर दिया या फिर खोल दिया। आप अगर एक जैसे होंठ नहीं रखेंगे अलिफ मद्दा के लिए तो क्या होगा, या तो आप खोल देंगे या होंठ बंद कर देंगे, तो ये आवाज जो है वो मुतासर होगी। अब हम आ जाते हैं या मद्दा की तरफ। या मद्दा भी आपका जॉफ से निकलने वाला लेटर है, जॉफिया है, और यानी लकब इसका जॉफिया है। आप इसको क्या देखते हैं कि इसमें आपकी या के लिए
آپ کا جو سینٹر ہے زبان کا وہ اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سینٹر زبان کا تو اٹھ گیا ہے, لیکن آپ کے جو لوور جوز ہے وہ نیچے آنے ہیں. یعنی آپ پڑھنا چاہتے ہیں فی یا قیلا, تو اگر آپ اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹوں کو رائٹ اینڈ لیفٹ پھیلا لوں گی تو نکل آئے گا قیلا قیلا, تو یہ باریک کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. قیلا ٹھیک ہے کہ میں نے اپنے ہونٹ کو ادھر ادھر سے پھیلا لی, ایسے نہیں, بلکہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیچے جانا ہے, آپ نے اپنے جوز کو نیچے لے کے جانا ہے. قی قیلا, ٹھیک ہے جی کہہ رہا ہے. اور ہونٹ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جیسے الف مدہ کے لیے ہیں, جیسے یا مدہ کے لیے سیم ہے, لیکن آپ نے اس میں اپنے لوور جو کو نیچے کر کے لے کے جانا ہے. تو یہ 3 لیٹرز کون سے ہیں؟ مدیہ لیٹر. مدیہ لیٹرز ہیں, الف واو یا شوفیہ مدیہ. یا مدیہ, الف مد یا مد واو مد. جوفیہ ہے, اور ان کا مخرج کیا ہے؟ یہ جوف سے, یعنی کہاں سے نکلتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے سے. خالی حصے. اوکے, یہ آپ کا ایک مخرج کمپلیٹ ہو گیا جوفیہ. دوسرا مخرج آپ کا ہے حلقیہ, یعنی وہ لیٹرز جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلقیہ لیٹرز, کیونکہ وہ نکل کہاں سے رہے ہوتے ہیں؟ حلق سے. حلق سے. کیونکہ وہ حلق سے نکل رہے ہوتے ہیں. اوکے, تو حلق کے سب سے نچلے حصے سے یا باٹم پارٹ آف دا تھروٹ آپ کا جو لیٹر نکلتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا. اوکے, حمزہ اور ہا جب دونوں ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہوگا؟ صفات کا. حمزہ میں ووکل کارڈز بند ہو جائیں گے. ہاں میں کھل جاتے ہیں. ہاں میں کھلی رہیں گی اور آواز چلے گی, ہم پایا جائے گا, سانس چلے گی, سوری سانس. گڈ گڈ ماشاء اللہ. بیچ 1 بتا رہا ہے, بیچ 2 بتا رہا ہے, کون بتا رہے ہیں؟ دونوں. بیچ 1 سے صفات یاد کر کے کیسی یاد ہے صفات بیچ 1؟ باجی وہ بیچ 2 کو موقع دے رہے ہیں نا, مخرج الگ الگ ہے اس میں. ہم بیچ 2 کو موقع دے رہے ہیں, اس لیے نہیں بول رہے. اچھا نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں, ہم کو بیچ 2 والوں کو کم ہی آئے گا نا بیچ 1 والوں سے, آپ ہی ہم کو سکھا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں. نہیں کوئی بات نہیں, سب بول سکتے ہیں. تو کیونکہ جو کچھ آپ لوگوں نے سیکھا ہے آپ لوگوں نے سیکھا ہے, یہ تو ریویژن ہے تقریباً, آپ کو صرف ڈیفینیشن یاد کروانے کے لیے اور مزید کلیئر کرنے کے لیے کہ جہاں کوئی پوائنٹ آپ کا رہ گیا ہے اس کو آپ کلیئر کر لیں. صفات تو آپ انشاءاللہ پارا 2 میں کریں گے. تو فی الحال لیکن تھوڑی بہت تو آپ لوگوں کو بھی اتنا آتا ہی ہے کہ کون سا لیٹر موٹا ہے, کون سے لیٹر میں آواز چلے گی, کون سے لیٹر باریک ہیں, کس میں ہوا ہوگی, یہ تو بیسٹ کو بھی آتا ہے. ٹیچر ہم تھوڑی آتی, کبھی اتنی پرفیکشن نہیں آئی ہمارے. جی ہم بالکل نیو ہے تو ہم بھی چل پڑیں گے ان کے ساتھ. بالکل چل پڑیں گے, بالکل چل پڑیں گے. آپ یہاں سے سٹارٹ کریں, آپ کو جو چیز پیچھے رہ گئی ہے وہ آپ کو آگے آ جائے گی. یہ کوئی ایسی قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم چھٹی پارے سے سٹارٹ کریں یا پہلے پارے سے سٹارٹ کریں. ہم پہلے تجوید کے ڈیفینیشن کو یاد کریں یا پہلے اس کی امپلیمنٹیشن سیکھ لیں. یہ تو اللہ کا شکر الحمدللہ, ہر ایک جو بھی جہاں سے بھی سٹارٹ کرتا ہے بیسک چیز ہوتی ہے استقامت, صبر. آپ مطلب ایفرٹ اپنی جاری رکھیں, کانشیسلی آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ آپ نے کون سا کام کیسے کرنا ہے, اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے چیزوں کا, لیکن سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. جن کے گھر میں کام ہو رہا ہے پلیز مائک بند کر لیں. تو
अक्सर हल्क जो है और क्या कहते हैं हमारी जो बैच 1 और बैच 2 के स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि बैच 1 के स्टूडेंट्स सो रहे हैं। क्या ख्याल है बैच 1 के स्टूडेंट्स? मिस जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं। सब जाग रहे हैं। ऐसा हो कि मैं जब 4th क्लास लूँ तो फिर आप लोगों को कंपटीशन करवा दूँ, फिर थोड़ा सोच के पढ़िएगा, ऐसा ना हो कि बैच 1 वालों फिर ज्यादा अच्छा बैच 2 वाले कर लें। ठीक है, अल्लाह मालिक है। अल्लाह वालेकुम। ओके गुड, ठीक है जी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमजा और हा में डिफरेंस भी और साथ साथ ये कि कहाँ से निकलते हैं। देखिए हमजा और हा में फर्क क्या है, कौन बताएगा? सिस्टर, हमजा जो है वो उसमें आवाज और सांस दोनों नहीं चलते, मतलब इसके सुकून की हालत में आवाज और सांस नहीं चलाते, बल्कि झटके से जो है ना इसको हम आवाज चलाए बगैर पढ़ते हैं और मखरज जो है वो एकदम बंद हो जाता है। जबकि जो हा है इसमें आवाज भी चलती है और सांस भी चलती है, इसमें हम वक्त लगाकर उसको पढ़ते हैं। वेरी गुड। इसमें आप लोग देखें, बाकी जो हमारी न्यू बहनें हैं उनसे मखरज पढ़ रहे हैं इस वक्त, सिफात नहीं पढ़ रहे। इसमें हम ये देखेंगे कि देखिए जो हमजा है आपका वो कब निकलता है, जब आपकी वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो बंद होते हैं। माइक प्लीज बंद कीजिएगा, आवाज शोर कर रहा है। ओके, जैसे हमने क्या कहा था कि मुहक्कक, ये मखरज कौन सा है, ये मुकद्दर मखरज होगा, ये मुहक्कक? ये मुहक्कक होगा। मुहक्कक यानी जब आप लफ्ज पढ़ते हैं, ये क्या लिख रही हूँ मैं, इक़रा, इक़रा, ये आखिरी लेटर क्या है? हमजा। हमजा। इस हमजा पे आके आप रुक रहे हैं। हम किसी भी लेटर को कैसे देखते हैं कि जब हम उसको साकिन करके पढ़ रहे होते हैं, ऐसा ही है ना जी। तो जब आप हमजा साकिन को पढ़ना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं, पढ़ें आप सब और महसूस करें कि आपकी ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो एकदम से बंद हो गए। पढ़िए, इक़रा, बहनों जिसका माइक शोर कर रहा है वो अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। जो बहन का माइक शोर कर रहा है वो बहन प्लीज अब ऑफ कर लें। अब या सन सिस्टर सोबिया आप जरा अपना हैंड रेस करें तो। ये सिस्टर फातिका, ये सिस्टर आतिका, मैं 2-3 लोगों को बना रही हूँ को होस्ट, प्लीज जिनकी माइक से शोर होना तो फिर आप लोग उनको म्यूट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा या तियन्नकुम, तो आप या पढ़ते हुए क्या करेंगे, या तो इस वक्त जब झटका दे रहे हैं तो असल में क्या हो रहा है, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं आपके वो बंद हो रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना जी। तो ये है उसका यानी हमजा के निकलने की जगह, मखरज क्या है, मंतका, मंतका मतलब जगह, अवतार सौतिया यानी वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स जो है हमजा के निकलने की जगह है, जब वो बंद होता है तो वो सुकून की हालत में पढ़ा जाता है। जब इसी हमजा को जब आप जबर जेर या पेश के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं यहाँ से खुल जाते हैं, आ ई उ, ठीक है। हाँ में भी यही काम होता है कि आपके वोकल कॉर्ड्स खुल जाते हैं और साथ सुकून लगा के आवाज आ रही है?
अब आ रही है पहले जी आ रही है, पहले नहीं थी आ रही। से दोबारा से थोड़ा पीछे से दोबारा से समझा दें। ठीक है जी। हमने ये कहा कि आपका जो हमजा है उसके निकलने की जगह क्या है, वोकल कॉर्ड्स, मंतकातुल औतार सौतिया। तो औतार सौतिया क्या चीज होती है, वोकल कॉर्ड्स को कहते हैं। तो जब वोकल कॉर्ड्स आपके बंद होते हैं तो उसमें आपका हमजा सकून के साथ निकलता है। जैसे आपने या तियन्नकुम पढ़ा या इक़रा रा ये पढ़ा, ये क्या है, हमजा सकून की हालत में जिसमें वोकल कॉर्ड्स आपके बंद हैं। लेकिन यही हमजा अगर आप ज़बर ज़ेर या पेश के साथ पढ़ेंगे तो आपके ये वोकल कॉर्ड्स खुल जाएंगे, आ ई उ। ठीक है। हाँ भी आपका कैसे निकलता है, वोकल कॉर्ड्स के खुलने से निकलता है। और आवाज कैसे आएगी, जैसे आह, इसमें सांस होती है। हमजा में सांस नहीं थी, आप ये नहीं करते या नहीं, या एकदम से वोकल कॉर्ड बंद हो गया, वोकल कॉर्ड खुलता है तो इसके अंदर सांस होती है, आह ई ओह। ठीक है। तो फिलहाल तो आप लोगों ने जिनको, यानी आपको डेफिनेशन इस वक्त याद होनी चाहिए और याद करनी है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, कौन सा लक़ब क्या है इसका, टाइटल क्या है? हाँ जी, कौन बताएगा? अक्सा हलक सिस्टर के अक्सा हलक से निकल रहे हैं ये। हाँ, अक्सा हलक से निकल रहे हैं, वेरी गुड। और लक़ब क्या है इसका? हल्किया। हल्किया। हल्किया, ओके गुड। हल्किया लेटर्स हमारे पास कितने? लेटर्स छह लेटर है और निकलने की जगह 3 है। 6 लेटर्स है जगह है। और सब एग्जिट कितने हैं हमारे पास हल्क में? 3 3 है। तो पीछे हमने क्या देखा, ये आपका है बॉटम पार्ट। और अब हम जा रहे हैं, हाँ, अक्सा या बॉटम पार्ट या हलक का निचला हिस्सा। और अब है हमारे पास मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट और हलक का दरमियानी हिस्सा या वस्तुल हलक। तो वस्तुल हलक में क्या चीज होती है? एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस होता है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। तो ये जो एपिग्लॉटिस है वो ये एरिया है, ठीक है। ओके, एपिग्लॉटिस कौन सा एरिया है? ये एरिया है। वैसे आप लोगों को याद होगा जब आप लोगों ने अपनी तजवीद पढ़ना शुरू की होगी, यानी स्टार्टिंग में जब ये हम पढ़ते थे कि वस्तुल हलक से आइन और हा निकलेगा तो हम ये समझते थे कि गर्दन के दरमियान से, यानी हम ये समझते थे कि ये जो हिस्सा है ये दरमियाना है। ठीक है। आपने क्या बात याद रखनी है कि गर्दन का जो दरमियान है ना वो हलक का दरमियान नहीं है। यानी आप अभी इस पिक्चर को ही देख रहे हैं, आपको ये कहीं से लग रहा है कि आप हलक के यानी गर्दन के, ये गर्दन का स्टार्ट है। हाँ जी, यानी ज्यादातर लोग कोशिश क्या करते हैं या करवाते क्या हैं, आपको कहते हैं कि यहाँ से आप आई निकालने की कोशिश करें, यहाँ से अपनी फिंगर को आप प्रेस करें इस हिस्से को और आई निकालने की कोशिश करें या हा निकालने की कोशिश करें। तो सबसे पहले बात क्या याद रखनी है कि इसका मखरज एपिग्लॉटिस है। इसका मखरज आपकी गर्दन का वस्त नहीं बल्कि हल्क का दरमियान है। ठीक है। हल्क का दरमियान कहाँ पे आता है? हल्क का दरमियान आपका एपिग्लॉटिस पे आता है। एक सेकंड में इसको सही करना। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिसानिल मिज़मार। ये लिसानिल मिज़मार एपिग्लॉटिस को कहते हैं। सिस्टर आपकी जो तस्वीर है ना बहुत जूम हुई हुई है तो वाज़ा नजर नहीं आ रही स्क्रीन पर।
क्या सबके साथ है सर? नहीं आ रही है ना सर। नहीं आ रही है सिस्टर नजर। आप अपने स्क्रीन पे आ रही जी, ठीक है ओके जी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आइन का जो मखरज है वो हा के मुकाबले में, ये आपको मैं इसलिए बार बार जूम भी कर देती हूँ, आप लोग बेशक अपने फोन के हिसाब से इसकी सेटिंग सेट कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये हिस्सा छोटा है इस हिस्से के मुकाबले में, उसकी वजह तो डिफरेंट है। आपको जब हम सिफात पढ़ाएंगे तब भी हम बताएंगे कि आइन के अंदर तवस्सत होती है और हा के अंदर जो है वो रिखावा होता है, इसलिए उसका मखरज ज्यादा खुला हुआ है आइन के मुकाबले में। आइन के अंदर से तवस्सत होती है, उसका मखरज बंद नहीं है, खुला हुआ है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी उसके अंदर तवस्सत मौजूद रहती है। मकसद क्या है यहाँ पे कि जब आइन अदा करेंगे तो आपकी जो ये एपिग्लॉटिस है वो पीछे की तरफ उसको धक्का देगा और इस तरह से आपका मखरज बंद सा महसूस होगा, थोड़ा सा तंग सा महसूस होगा, थोड़ा सा छोटा महसूस होगा। जबकि हा कहते हुए आपकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरफ होती है और खुल सी जाती है, ठीक है। आवाज आ रही, महसूस हो रहा है क्या है जी। दूसरी तरफ क्या है, इसमें ये मखरज बंद होता है ठीक है। इसका तरीका क्या है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करें कि आइन के साथ अलिफ मद्दा और हा के साथ अलिफ मद्दा पढ़ें, तो आप महसूस करेंगे एक मर्तबा आपकी डायरेक्शन हलक की जानिब यानी बंद करने की जानिब होगी और दूसरी बार आप इसको खोल देंगे, यानी आ हा आ हा, इस तरह से आप इस मखरज को पा लेंगे। तो ये कौन सा मखरज था? बस्ते हलक। हाँ, इसको क्या कहते हैं एपिग्लोटिस को अरबी में? लिसानिल लिसानिल मिज़मार वस्तुल हलक। मिस फाखिया इसको उर्दू में क्या कहेंगे? परजीब ऐसा कुछ? दरमियानी हलक। ये जो आप ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो मुझे इसमें ग्लैंड्स याद नहीं नहीं आ होते रहे। वो जी जी, ये जो ग्लैंड्स नहीं होते गोल बच्चों के जो बॉल से होते हैं जो बच्चों के गले खराब होते हैं उनके वोकल कॉर्ड्स को तो सौती धागे कहते हैं, लेकिन इसको मुझे इसको क्या किया गदूद तो नहीं कहते, तालू तो नहीं कहते। मुझे ऐसा लगता है कि इसे परजीब ही कहते हैं, मतलब जो हमारी छोटी जबान होती है जो, ऐसा मुझे महसूस होता है। नहीं सिस्टर, असल में जो एपिग्लॉटिस जो है ना, मैं वो एनाटॉमी यानी जो साइंस के एतबार से बताती हूँ, चीज होती है जो कि हमारी सांस और खाने की ग़िज़ा की नाली के ऊपर वो मौजूद होती है। जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस है वो ग़िज़ा की नाली पे आ जाता है, और जब हम सांस लेना चाहते हैं यानी जो नॉर्मल चलती रहती है सांस, खाना तो हम किसी वक्त खाते हैं ना, तो ये यानी ये मूवेबल होता है। सम टाइम इट्स ऑन द फुट पाइप एंड सम टाइम ऑन द एयर पाइप। कभी ये ग़िज़ा की नाली पे जाता है, यानी खाना जब हम खा रहे होते हैं निगल रहे होते हैं तो ये खोल देता है ग़िज़ा की नाली को और ऊपर से विंड पाइप पर आ जाता है, यानी सांस की नाली पे आ जाता है, ताकि ग़िज़ा जो है वो सालो हो जाए या निगल ली जाए। तो ये एक ना ढक्कन नुमा चीज होती है जो कि हमारे दरमियानी हलक, जैसे हमारा माउथ खत्म होता है और ये दोनों नालियां शुरू होती हैं, क्योंकि आगे पीछे होती हैं ग़िज़ा की नाली और विंड पाइप जो होती है। ग़िज़ा की नाली जो होती है वो तो आगे पीछे होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर इनकी पोजीशन बिल्कुल इस तरह से है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके शायद समझ में आया हो। तो ये कोई यानी गदूद नहीं है, ये सिर्फ एक ढक्कन नुमा फ्लैप है। बिल्कुल जो आगे की ओर पीछे होता है, लेकिन इसको उर्दू में क्या कहते हैं ये मुझे ये फिलहाल याद उर्दू नहीं में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी ये चीज है। हलक का कवा कहते हैं। नहीं वो युबुला है, ये वो नहीं युबुला है। है।
वो जो एक आपको ऊपर आप अपना मुंह खोले ना, एक बीच में जो चीज आपको गोश्त की लटकी हुई नजर आती है ना, उसे कौवा या युविला कहते हैं। इसे जबान की बांसुरी कहते हैं। ओके, अच्छा, बांसुरी। जी जी, इसको अल्लाह जबान की मुबारक। बांसुरी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं हरूफ हल्कियात के तीसरे मखरज पे, जो कि है अदना हल्क, और ये आपका हल्क का ऊपरी हिस्सा या टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट आप इसको कह सकते हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि इसकी हाँ जी, मंतका जज़र लिसान मआ हनकल लहमी, आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यानी इससे भी आपको अंदाजा होगा, क्योंकि हो सकता है जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके दिल में, चाहे वो बोले या ना बोले, हमने पुरानी बातें बहुत इतनी मतलब याद की होती हैं कि लोगों के दिल में ये ख्याल पहुंचता ही है कि ये जो बात कही है कि यार ये क्या बात हुई, इन्होंने एक नई बात बोली कि आइन और हा जो है यहाँ से नहीं निकलेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो आप इसको यही देखनी है कि ये क्या कहा मैंने, इसको ज़बान की जो बांसुरी है या मंतका जो है, लिसान अल मिस्मार जो है वो आइन और हा का है, जबकि आपका जो इससे जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहाँ है, वो तो आपके तकरीबन ऊपर के हिस्से पे पहुंच चुका है। यानी हल्क का जो ऊपरी हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है, यानी जज़र लिसान और मआ हनकिल लहमी। अब जज़र लिसान क्या होता है, जज़र कहते हैं रूट को, ठीक है, और हनकिल लहमी, हनक कहते हैं जो आपका पैलेट होता है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये आपका अपर पैलेट जो है वो हनकिल आला कहलाता है, और उसमें यहाँ पर जो आपकी लहमी यानी जो सॉफ्ट पैलेट है उसको कहते हैं हनकिल लहमी। इससे क्या निकलता है, मखरजुल गैन और खा। अब आप देखें, आप आवाज निकालते हैं या आप आवाज निकालते हैं अख, तो आपको फीलिंग आती है, यानी अगर ये सिर्फ और सिर्फ हलक हलक के दरमियान होता तो आपकी फीलिंग इस तरीके से, जैसे हमजा और खान आप निकालते हैं तो आपको उस तरीके की फीलिंग जबान से आप कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। लेकिन आप जब गैन और खा निकालते हैं तो आपको फील होता है आपकी की जबान कहीं पे टच कर रही है, लेकिन वो टच क्योंकि किसको कर रही होती है, हनकल लहवी को, सॉफ्ट पैलेट को। तो आप बहुत ज्यादा टकराव नहीं महसूस कर सकते, जैसे कि आप जीम में कर सकते हैं। जब जीम जो लेटर है, जब आप इसको अदा करते हैं अज, तो आप महसूस करते हैं कि ये हार्ड पैलेट है, सख्त है ये, ठीक है। लेकिन अख अख आपको फीलिंग तो आ रही है ऊपर कि कुछ ना कुछ जबान किसी चीज के साथ टच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि वो ऊपर का जो हिस्सा है वो सॉफ्ट पैलेट है, तो इस वजह से उस पर वैसा टकराव नहीं पैदा होता जैसे कि जीन के साथ पैदा होता है। तो अदना हलक कहाँ है, जुबान की जड़ जब सॉफ्ट पैलेट को लगे। वेरी गुड, जब जबान की जड़ जो है वो सॉफ्ट पैलेट को मिले। लेकिन जब हम इसको याद कर रहे होते हैं या आप तजवीद की डेफिनेशंस में अक्सर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होता है कि हल्का ऊपरी हिस्सा या टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट, और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अक्सर जगह पे मौजूद नहीं होती। तो अगर आपने सुनाना है या अपने लिखने की हद तक आपका पेपर एग्जाम्स वगैरह हैं, तो अगर आप ये लिख देते कि टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट या हल्का ऊपरी हिस्सा, तो आपका मखरज सही है। लेकिन जब आपने अदायगी करनी है तब आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पे अदायगी कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, इसलिए कि इससे पहले जब आप आइन और हा के लिए गलत मखरज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि, क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं, हमजा और हा के लिए क्या बोला जाता है कि वो इतना पीछे कर दिया जाता है हमजा और हा, कि बोलते हैं कि जो सीने की तरफ है, जो सीने से निकलता है, तो वो सीना सीना कर करके बात ऐसे लगती है कि ये पता नहीं वो वोकल कॉर्ड से भी शायद नीचे कुछ जगह उनको मिल रही है जहाँ से वो हमजा और हा निकालने की कोशिश करें। तो अगर वो जगह ठीक नहीं होगी तो फिर बाकी जगह की भी सेटिंग सेट नहीं होगी। तो क्या याद रखना है कि हमजा और हा वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, आइन और हा जो है आपके एपिग्लॉटिस से निकलते हैं, और गैन और खा जो है आपकी रूट से निकलते हैं, जबान की रूट से।
زبان کی جڑ سے، حنک اللحمی یعنی سافٹ پیلٹ سے نکلتے ہیں. اور ان کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ حلقیہ. حلقیہ. تو آج ہم نے 2 مخرج پڑھے، ایک حلقیہ مخرج پڑھا اور دوسرے یعنی حلق کا مخرج پڑھا، اور ہم نے جوف کا مخرج پڑھا. امید کرتی ہوں کہ کافی ہو گیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ پورا ہفتہ ہے، مزید اس کے اوپر جو ہے آپ اپنے کلاسز میں اس کے اوپر مزید پریکٹس کریں اور ٹیچر سے پوچھیں کہ آپ کا مخرج صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. باقی جو اسٹوڈنٹس رحلۃ القرآن کے جب ہم آگے منڈے سے کلاسز اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی پریکٹس جو ہے ہم اس کی کریں گے انشاءاللہ. سسٹر جو باقی مخارج ہیں وہ آپ اس سے نیکسٹ کلاس میں پڑھائیں گے؟ جی جی بالکل. جی نیکسٹ کلاس کب ہوگی؟ نیکسٹ کلاس سیٹرڈے اسی ٹائم پہ انشاءاللہ. جی بتائیے انشاءاللہ. اور ٹیچر فاکیہ اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی نا؟ جی جی اس کی ریکارڈنگ. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.